question. This was a question in your sample paper that there are how many meiotic divisions are required for the development of 400 seeds. This is a question. हाँ जी, आप बताइए मुझे, what according to you should be the answer? How many meiotic divisions are required for the development of 400 seeds? Yes. How many meiotic divisions are required for the formation or for the development of the 400 seeds? Yes, tell me. The options there were 300, 400, 500. I don't know exact sequence, but these were something the options like. Hanji, you tell me out of these options. Hanji Shivam. मैम 400 सीड्स वाला ना 500 आया था. 500 आएगा उसमें, मैं यही बताने लगी हूँ. How it is 500? एक्चुअली हमने इसमें क्या किया है, कल जो कंसेप्ट किया था हमने 400 सीड्स के लिए हमने 400 ही आगे माइक्रो जो मेगा मदर सेल्स की, मेगास्पोर मदर सेल्स की बात करी थी, एमएमसीज की बात करी थी. तो मेगास्पोर मदर सेल के केस में हमने ये बोला था as one meiosis that results into the 3 of these cells, megaspore mother cells, and out of those 4 the 3 get degenerated, है ना. Only one becomes functional. ये हमने कल पढ़ा. अब उसके हिसाब से हमने क्या किया कि अगर हमारा एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ओव्यूल बनता है और एक ओव्यूल से ही हमारे आगे एक सीड बनता है ना. ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया, ये मैं यहाँ पे बताती हूँ. वन मेगास्पोर मदर सेल that results into the formation of one ovule, and this one ovule that results into the formation of one seed. Now because we are having 400 seeds, so we thought of that they will be developing from the 400 ovules, which is correct, and that requires 400 megaspore mother cell. ये इस तरह से हमने कल कंसेप्ट लगाया था और कल हमने इसको 400 को टिक किया था. बट एक्चुअली वी फॉरगॉट कि ये सीड्स बन रहे हैं. सीड्स कब बनेंगे? when they undergo fertilization. And fertilization के लिए male gametes are also required, है ना. One male gamete is required for the formation. One meiotic division will result into the 4 of the male gametes formation, and those 4 के 4 चारों के चारों जो pollen grains बनते हैं, चारों के चारों आगे fertilization दे सकते हैं, है ना. तो अगर हम कहें कि after every one megaspore mother cell which is undergoing meiosis, there is also one microspore mother cell but resulting into 4 pollen grains. यानी these 4 pollen grains में से एक तो यही fertilize हो गया, 3 और fertilize हो जाएंगे. ये concept आ रहा है ना. Means what? We require for 400 of the, not ovules, for the 400 of the seeds. For 400 seeds we require 400 male gametes as well. अगर 400 ovules 400 seeds बनाती हैं तो 400 pollen grains भी चाहिए हमें जो कि उसकी fertilization कर सकें. कंसेप्ट सही है, ठीक है. पर अब ये जो 400 pollen grains हैं, 4 pollen grains एक meiosis से बनता था, तो 400 हमारे पास कितनी meiosis से बनेंगे? 100 डिवाइड बाय 4 से बनेंगे ना. So 100 meiotic divisions resulting in the 400 pollen grains. So overall we require how many divisions, meiotic division structures कितने हो गए और meiotic divisions कितनी होगी टोटल हमारे पास? 400 plus 100. 400 is of the megaspore and 100 is of the microspore. Are you getting? So total of 500. This is wrong. Okay. Yesterday we were only focused upon the ovule and the concept of the ovule. कि 4 में से एक degenerate, 3 degenerate हो जाएंगे, एक रह जाएगा. तो ये concept हमारे mind में आ रहा था, इसीलिए हमने ये 400 seeds का concept लगाया है. सही हुआ? Clear हुआ बच्चे? Why it is 500? Yes. हाँ, ठीक है. So we require both, right? Now I am continuing the paper. You have a look on the questions. Those who could not attend the questions earlier, you please have a look from 29th question. If you have any doubt in any question, you can please tell me. The 29th question, where the concentration of the substances will decrease, is oxygen and the urea. Sorry, oxygen and amino acids. ठीक है, not urea. Next is fertilized ovule में N कौन है? Antipodal. 2N कौन है? Zygote. 3N कौन है? Endosperm. Then similarly for this, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा concept आया था कि 2 flowers. ये question पढ़ के देख लो एक मिनट. 31st. A botanist studying viola noticed that one of the 2 flower types withered and developed no further due to some unfavorable conditions.
2 फ्लावर्स थे, 2 में से एक विदर हो गया, डेवलप नहीं किया, सिर्फ एक रह गया, और उस एक की सर्वाइवेबिलिटी कैसे हुई? वो एक सर्वाइवेबल हुआ जब उसने एग्जिबिट किया ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन एग्जिबिटिंग कहाँ आती है? क्रॉस तो होनी नहीं है, दूसरा है ही नहीं है। तो हमारे पास ए में सेल्फ पॉलिनेशन था, सेकेंड वाले में एग्जिबिट विद ऑटोगेमी है, क्रॉस है, थर्ड में बोथ ऑटोगेमी विद ऑटोगेमी है, वो भी क्रॉस है, और फोर्थ में वो लिख रहा है इट नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी, वो भी क्रॉस है। सो इट इज ओनली वन, एंड आल्सो इट सर्वाइव्ड बिकॉज़ इट वाज अ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है, रिजल्टिंग इनटू द सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज 32nd, फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन having the prolonged labor pains and the childbirth has to be fastened. It is advisable to administer a hormone that can, हार्मोन से चेंज क्या आएगा? हार्मोन कौन सा चाहिए होता है? दैट इज ऑक्सीटोसिन, oxytocin, and the hormone oxytocin that will give a change that is in the smooth muscles. It activates the smooth muscles, causes more contractions, and hence leading to the faster parturition. Okay, next is a female undergoing. अच्छा, यहाँ पे आपकी जो वो है मार्किंग स्कीम दी हुई है, इसमें साथ ही मार्किंग स्कीम गिवन बाय द बायोलॉजी CBSE पेपर के साथ ही गिवन है, उसमें आंसर बी लिखा है यहाँ पे GIFT, which is totally wrong. Okay, this should not be the answer. Our answer is correct, and that is IUT. Okay, so this is a female undergoing IVF treatment, has blocked fallopian tube. The technique by which the embryo with more than 8 blastomeres will be transferred into a female for further development is IUT, right? The mode of action of the copper ions in an IUD is to decrease the movement of the male gametes. This is the question, 35th question हमने कल भी mark किया था. Now we are okay with this. Now our doubt has been cleared. So what is the answer here? For 400 seeds, it requires 400 of the female gametes and 100 of the male meiotic division. 400 meiotic divisions for the development of the female gamete and 100 meiotic divisions for the development of the 400 pollen grains. 400 ovules and 400 pollen grains undergo fertilization, resulting into the 400 seeds. Okay, Anji, Tushar, Varun, is it clear? Okay. Next question was for the F2 generation. A cross is made between tall pea plant having the green pods and dwarf pea plant having yellow pods. F2 generation में out of 80 plants, how many are likely to be tall plants? Can you explain this? How it came out to be 60? Tushar and Varun, any one of you? Because Shivam has discussed it yesterday also. Tushar and Varun, can you both or any one of you can explain how it comes out to be 60? Are we going to construct this cross for 80 plants? No, 80 is quite a big number. हम उसके लिए नहीं बना सकते. So how we are going to get the answer? NG? रेशो लगा देंगे ना. रेशो से बनाएंगे. तुषार, आपको आता है कि नहीं आता है बच्चे? मैं कराऊंगा इसको बोर्ड पे. ये वही वाला ही है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के फेनोटाइपिक रेशियो से करना है. हाँ, डाई हाइब्रिड है. तो डाई हाइब्रिड में हमारे पास हमने क्या पढ़ा था? टॉल एंड ग्रीन, दैट इज प्योर डोमिनेंट, देन ड्वार्फ एंड येलो पॉड्स, है ना. तो दिस इज प्योर रिसेसिव. अब अगर हम इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं, यू गेट टू हैव द 9:3:3:1 रेशियो, और उस 9:3:1 रेशियो में से हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 12 ऑर्गेनिजम्स. यू नो दिस 12 ऑर्गेनिजम्स कंसेप्ट हैविंग द टॉल करेक्टर, क्योंकि हमें सिर्फ टॉल प्लांट बोला है, उसे एक करेक्टर की एक्सप्लेनेशन पूछी है. सो यस मैम. हाँ, इसमें हमारे पास 12 ऑर्गेनिजम्स आउट ऑफ व्हाट 16 आ रहे हैं. ठीक है, 12 out of 16, and so out of 18 it will be 12 by 16 into 80, and if you cancel out it mathematically you will get the 60 as answer. Okay, right? Haji, will you get this? Have you solved it in your notebook? Yes ma'am. These kind of the questions are the only kind of the questions which we say are concept based. ठीक है, यही हमारे conceptual questions हैं. ठीक है. Okay, next is antirrhinium में RR red है, smaller pink है. Select the correct phenotypic ratio where when a cross is performed between capital R and capital R small r. capital R और capital R small r हमारे पास आएंगे 50-50 रेशियो में आएंगे.
और 50 में हमारे पास रेड है और 50 हमारे पास पिंक है, यानी कि 2:2 इज द रेशियो, 2:2 रेड इनटू पिंक। ठीक है, व्हाइट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं क्योंकि स्मॉल आर्स का पेयर ही नहीं है। सो पहले दो तो वहीं पे गलत हो गए, और कैपिटल आर का पेयर बन सकता है तो रेड आएगा, तो फोर्थ वाला भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स इफ द ऑफस्प्रिंग हैव द फिनोटाइप 1:1। 1:1 is obtained when it is a test cross. Test cross is when it is the heterozygous parent that is crossed with the homozygous recessive parent. Heterozygous offspring जो होता है उसको हम homozygous recessive के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो it gives us the phenotypic as well as genotypic ratio as 1:1. Next is, this was the pedigree analysis and we had to look out for what is the pattern of the inheritance in the above pedigree chart. So it is autosomal recessive. If you see falling from the right side to down, अगर हम नीचे थर्ड जनरेशन से ऊपर तक जाते हैं, the parents in the line they are having only one schedule. ठीक है, लेफ्ट साइड से भी नीचे आके देखो 1 to 3 जनरेशन में it is only the parent of the second generation which is having the shaded part. बाकी दोनों में एब्सेंट है, तो 2 out of 3 जो जनरेशन है हमारी, they are not showing the trait and hence this is resulting in a recessive trait, right? And in the same generation male and female both are infected, है ना, जैसे हमने ये यहाँ पे बात किया था, this is the female and this is the male। ठीक है, सो ये वाली फीमेल और ये वाला मेल जो है ये दोनों हमारे पास इकट्ठे एक ही जनरेशन में दोनों इन्फेक्टेड आ रहे हैं, सो इसमें क्रिस क्रॉस फॉलो नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आप देखें फर्स्ट जनरेशन का जो मेल है दैट इज गिविंग टू द फीमेल बट द फीमेल इज नॉट ऑफ द थर्ड जनरेशन पेरेंट। ठीक है, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है उस लाइन से देखेंगे तो उसमें हमारी शेडेड फीमेल नहीं आ रही है, हेंस इट इज ऑटोसोमल नॉट एलोसोमल। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट 40th, couple has 2 daughters, what is the probability of the third child be a female? That is 50%, because here is always a 50-50 chances that they will be getting a male or a female। ठीक है, लेकिन अब 2 हो चुकी हैं का मतलब ये नहीं है कि तीसरा जो है वो फीमेल होगा ही नहीं, अगेन द चांसेस आर 50-50, राइट। जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 इज ऑब्टेन्ड व्हेन 1:1 आपने पढ़ी हुई है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन के पेरेंट्स क्या होते हैं, दोनों हेट्रोजाइगस, तो इसलिए ये हेट्रोजाइगस। देन इज यहाँ पे शार्गफ रूल क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, क्योंकि ATGC की परसेंटेज सबकी अलग अलग है, सो इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर डबल स्ट्रैंडेड होता तो A कुड हैव बीन इक्वल टू T एंड G इक्वल टू C। ठीक है, रेशियो इज ऑलवेज 1, A प्लस C बाई G प्लस T, इसका रेशियो जो आता है वो हमेशा 1 आता है। ओके, देन इज नेक्स्ट इज अ स्ट्रेच ऑफ यूक्रोमैटन। ये आपने देखा शिवम, इसमें आंसर was it given in the book? नहीं मैम, बुक में नहीं देखा। I could not also see this. This was the answer given, but still I am not confirmed it from the internet or the book. I'll do that and you also please do this. If this value is given or not, this 13,600 into 10 raised to power minus 9. Okay. 44th question में what is the correct, you can say following statements इनमें से कौन सा correct है for A and B? So it is the change which is shown at the 2' end and the 2' OH group, which makes it more stable in A, and B it is not having the OH group, so that is it is less reactive, okay, structurally unstable। okay, ये आ गया हमारा next, that is Messels and Stahl का। यहाँ रेशियो 0:131 कैसे आई है बताइए, read the question। Tushar and Varun and Shivam, if you can also explain me. Yesterday we dealt with this, but you please explain. Tushar, if you have an idea, you can explain. हम इसमें वही सेमी कंजर्वेटिव का लग जाएगा ना, स्ट्रैंड एक पेरेंट का रहना ही है। हाँ, और इससे 6 जनरेशंस की बात करी थी ना यहाँ पे, दैट इज इट इज कंटिन्यूड फॉर द 6th जनरेशंस इन बैक्टीरिया। तो 6 जनरेशन में अगर हम काउंट करेंगे, फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट 2 स्ट्रैंड्स, 2 DNAs, 2 क्रोमोसोम्स विल बी देयर, है ना, तो 2 क्रोमोसोम आएगा पहले का, फिर दूसरे के 4, तीसरे के कितने हो गए 8, फिर 16, 8 नहीं कितने हो गए, इट इज 1 देन 2 4 4 से आएंगे 8, 8 से 16, 16 से 32। ठीक है, सो 6th जनरेशन में हमारे पास जनरेशन में आ रहे हैं 32 न्यू ऑर्गेनिजम्स, टोटल ऑफ 32 ऑर्गेनिजम्स। So when in the 6th generation is 32, so out of it there will be no with the both the strands as heavier, heavy वाले तो कम होते रहेंगे,
और हाइब्रिड वालों में से भी हमारे पास कम होते रहेंगे और जो नॉर्मल है वो सबसे ज्यादा बढ़ते जाएंगे एंड टोटल हमारा 32 रहना चाहिए है. सो ये हमारे को डी में मिल रहा है, दैट इज 31 plus 1, that is 32. Okay, coming to the 46th question now. You read this question 46. The two important RNA processing events lead to the specialized sequence in most human mRNAs 1 and 2 and 3. चार ब्लैंक्स बनाई हुई हैं यहाँ पे. इसको रीड करो और जस्टिफाई करो कौन सी ब्लैंक में क्या आना चाहिए. मैम सी आएगा. The capping at the 5 end, yes, 5 prime end, and the tailing, सीखा गया. Polyadenylation, अच्छा, polyadenylation at the 3 prime end. C is the answer according to you. ये वाला ना, capping, polyadenylation, and then G triple P, that is at the 5 prime end. The most distinctive specialized end nucleotide is added, methylated guanosine, and then a sequence of the about 200 poly A tail is added to the 3 prime end. ठीक है. ठीक है, बिल्कुल. ये तो प्रोमोटर, रिप्रेसर, ऑपरेशन वगैरह तो आना ही नहीं है. प्रोमोटर इलॉन्गेशन रेगुलेशन आना ही नहीं है. टर्मिनेटर एंड प्रोमोटर जोन्स, इनिशिएटर कोडोन एंड रिलीज फैक्टर्स. 46, yes, it is C only. हाँ जी, is it clear? C is the clear cut answer, right? What are mini satellites? What are mini satellites? A satellite is a unit with the repetitive DNA, है ना? Repetitive sequence जो होता है DNA का, that is a satellite. And this is a short, mini means very short sized but non-coding region, or the repetitive sequence forming the large portion of the euchromatic genome, that is a mini satellite. So this is the answer C. Okay. Next is 48. There was मैं यही क्वेश्चन कर रहा था. ये वाला कह रहा, अच्छा ये वाला कह रहे थे. Okay. There was a mix-up at the hospital after the fire accident in the nursery division. Which of these children belong to the parents? अब फादर मदर ये रहे और चाइल्ड ये रहे सारे. अब इनमें से आपने बेस्ट मैच ढूंढ लेना है. कौन सा है? लेन 1 2 3 4 8 लेन्स दी हुई है आपको. विच इज द बेस्ट मैच? चाइल्ड 1 देखो फादर के साथ तीनों उसके बैंड मिल रहे हैं, फर्स्ट वाले. फिर उसके साथ मदर, ये देखो मदर के साथ मिल रहे हैं, ये मुझे बताना पड़ेगा. ये तीनों बैंड्स ये वाले और ये वाले तीनों बैंड्स इधर चाइल्ड 1 के, ये मैच कर गए और किसी में नहीं आए. ठीक है. फिर ये मदर का 1 बैंड और ये चाइल्ड का 1 बैंड, ये भी आ रहा है. फिर इसके बाद ये मदर का और ये मदर का आ रहा है. फिर ये भी मदर और मदर मैच हो रहे हैं और ये भी मदर मैच हो रहे हैं. मदर और चाइल्ड का, सॉरी, ये मैच हो रहा है. ठीक है. ओके. सो इसके सीक्वेंसेस जो मैच किए 3 4 5 6 7 मैच कर रहे हैं अपने पेरेंट के साथ कहीं ना कहीं. ठीक है. इनमें दिख रहा है चाइल्ड 2 में तो कुछ भी नहीं मैच है, सब कुछ अलग. ये वाला एक मैच है, ये मैच है ना, सेम लेवल पे जा रहा है ना, इसके साथ और इसके साथ, मदर के साथ और फादर के साथ भी रहा है. ठीक है. ओनली 1 मैच. ओके. थर्ड चाइल्ड में देखो, दिस इज 1 मैच एंड नो 2 मैच. ये थर्ड मैच, सेकंड मैच हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया. ये थर्ड चाइल्ड में 4 मैचेस आ रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे आप साइड पे पेंसिल से लिखते रहना. ये 4 मैच में हुआ है, ये हुआ है 3 4 5 6 7 8, ये तो है ही है पक्का, इतना ज्यादा मैच हो रहा है. ठीक है. सो 1 चाइल्ड किस किस में गिवन है? 1 है ही सिर्फ ऑप्शन सी में. 1 वाला तो है ही है. ऑल ऑफ द चिल्ड्रन भी गलत हो गया और डी और बी भी गलत हो गया. ठीक है. क्योंकि 1 को दे नहीं रहे. 1 में तो बेस्ट मैचेस आ रहे हैं, तो ज्यादा सिरखपाई करो ही मत, सीधा ही आंसर आ गया सी. हाँ जी. ठीक है तुषार. मैम शायद आंसर कोई और गिवन है, शायद नहीं, आंसर यही होगा, हम देख लेंगे इसको. लगा था, देख लेता हूँ. हाँ, मार्किंग स्कीम में देख. है क्या कह रहे हो? आंसर की मिली है साथ में. मेरे को समझ नहीं आया शिवम, आपने आंसर की साथ मिली है. आंसर की है इसकी, मैंने डाउनलोड नहीं की है.
आई जस्ट व्यूड इट इन द अर्ली जब ही आया था ना, तब मैंने देखी थी आंसर की और क्वेश्चन पेपर साथ साथ में, बट इतना ज्यादा मैच करके नहीं देखा था। यही होगा, 8 मैचेस मिल रहे हैं देखो, चाइल्ड 1 के, और 1 तो कहीं और है ही नहीं है। ऑल ऑफ द चिल्ड्रन में 1 का ऑप्शन आ सकता था, पर चाइल्ड 2 में देखो एक ही सिर्फ मैच है, तो 2 तो है ही नहीं है। फिर 2 वाले तो पहले ही गलत हो गए, बी डी और ए सारे गलत हो गए, 2 वाला तो सिर्फ एक ही मैच दे रहा है। फिर आगे आपको सिर खपाई करनी नहीं है। अगर ज्यादा टाइम है तो लगा के देख लो, इनके भी बेस्ट मैचेस देख लो। स्केल रख के चेक कर सकते हो ना आप, स्केल रखो सामने सामने, आपको बैंड्स नजर आएंगे, ठीक है। वो ज्यादा बेस्ट इजी मेथड है वो ऐसा चेक करने के लिए। तो स्केल रख के मैचिंग कर लो और ऊपर ऊपर नंबर लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 8 4 ऐसा। तो ये चिल्ड्रन 1 और 3 तो कंफर्म हो गए, 4 और 5 6 में से भी हम देख लेते हैं अगर, तो उसके ज्यादा मैचेस नहीं बनेंगे हमारे पास, ठीक है। मिस मैच पेयर ज्यादा बनेंगे, मैच पेयर कम बनेंगे कंपैरेटिवली, राइट। बाकी स्केल रख के देखो, आपके पास इसका प्रिंट आउट पड़ा है तो स्केल रख के देखो, फिर ज्यादा बढ़िया पता चलेगा। एंड स्टिल आई कंफर्म द आंसर, ठीक है, विल कंफर्म दिस आंसर। हाँ जी मैम, इसके आंसर्स एक बार ग्रुप में सेंड कर देना। हाँ, तभी मैं ये शेड मार रही हूँ, इसी को ही मैं आपको कर दूंगी एंड में ये सेंड, क्योंकि हमें अभी मैंने एक क्वेश्चन के लिए बताया, वो GIFT वाला IUT वाला था ना, तो आपकी जो आंसर की थी मैंने उसमें से ये कंफर्म किया था। दिस वाज जो येस्टरडेज आंसर्स हैं उसमें GIFT गिवन है, बट आवर आंसर इज करेक्ट। आई हैव कंफर्म्ड इट फ्रॉम इंटरनेट आल्सो, दिस इज IUT। मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स वाला जो होता है वो IUT है, लेकिन मार्किंग स्कीम में गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैं आपको वो नहीं भेजूंगी, मैं आपको ये भेजूंगी, मार्किंग स्कीम वाला नहीं भेजेंगे हम। ये सारा हाईलाइटेड जो है आपको मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, जिसपे हमने काम किया है, वर्कआउट किया है, वो भेजेंगे। Okay, now this is one case study followed by the 6 questions and additional 6 more questions are given which you have to do any 10. So here we are not putting for 10 questions, we are putting only one case study. No, we are putting 5 and 5 from the 2 case studies. Okay, 2 केस स्टडीज आएंगी, 5 के 5 आपके लिए कंपल्सरी हैं, 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं दोनों केस स्टडीज में से, ठीक है। एंड रादर वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द क्या कहते हैं इसको, चॉइसेस इन योर इंटरनल एग्जाम, राइट। अच्छा, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन बिफोर आई फॉरगेट दिस, जस्ट आई एम स्टॉपिंग दिस फॉर अ व्हाइल, just listen it very carefully. The students, for you people, when you are attempting your paper, there is an OMR sheet which you are going to get, right? Like this something, you are going to get your OMR sheet with the numbering of the questions and ABCD options, ठीक है। अब ये आपके सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स हैं आपके, आपने आंसर्स भरने हैं, सर्कल्स में शेड करने हैं। Many of you have given the competitives earlier also in your junior classes, but still listen it very carefully. When you are seeing into answer, like जैसे आपको सेकंड का लगा इसमें आंसर होना चाहिए D, आपने ये D शेड कर दिया, ठीक है। एक तो शेडिंग पूरा प्रोमिनेंट करना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लो, नहीं तो गलतियां करेंगे आपके नंबर जाएंगे। पहली चीज, आपने शेडिंग बहुत प्रोमिनेंट करना है, कल्ला डॉट लगा के छोड़ दिया तो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट एज एन आंसर, नंबर 1, ठीक है। सेकेंड, थोड़ी देर बाद आपको याद आया कि नहीं D नहीं है इसका आंसर, तो B होना चाहिए। आप इस तरह कट करके यहाँ पे कर रहे हो या वाइटनर लगा के कर रहे हो, दैट आंसर विल बी फुली क्रॉस्ड। आप अगर इसमें रीडू कर रहे हैं किसी भी आंसर को, तो वो आंसर आपका पूरी तरह से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, इस तरह से ओवरराइट नहीं करना, कट करके दोबारा आंसर नहीं अटेम्प्ट करना। एक ही आंसर में अगर आपने 2 ऑप्शन ऐसे मार्क करी हैं, लेट से A किया है और D किया है, ऐसा आंसर भी रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट, आपने ओवर अटेम्प्ट तो खैर है ही नहीं आपके पास अभी फिलहाल, CBSE बोर्ड पेपर्स में होंगी जहां 60 क्वेश्चंस है, 50 करने हैं, आप ओवर अटेम्प्ट करते हो तो उनके नंबर नहीं है, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट का कोई मार्क्स नहीं है, उन्होंने फर्स्ट 50 इन सीरीज जो है वो चेक करने हैं आपके लिए। अब के लिए सारे 50 इंपॉर्टेंट है, आपने सारे करने, सारे कंपल्सरी, ठीक है, गेटिंग। सो अगर आपने 2 आंसर्स मार्क किए तो भी ये गलत है, अगर आप इस तरह से कट करके दूसरा मार्क कर रहे हो वो भी गलत है, वाइटनर लगा रहे हो वो भी गलत है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक आंसर होना चाहिए ABCD, अगर आपने इस तरह से डॉट लगा दिया तो वो भी गलत कंसिडर किया जाएगा। दैट योर आंसर इज C एंड यू वर इन अ हरी एंड यू जस्ट पुट द डॉट 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 एंड हमने आंसर दे दिया, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू चेक दीज डॉट्स, ओके। थर्डली, अगर आप अपना एक आंसर प्रोमिनेंटली चेक करवा रहे हैं तो दैट शुड बी द वन व्हिच इज हैविंग ओनली वन शेडेड एंड प्रॉपर्ली शेडेड सर्कल लाइक दिस। Why we are making these compulsions? Because
दिस टाइम मे बी वी आर चेकिंग इट विद द मैनुअल हैंड, ठीक है, हम लोग अब चेक कर रहे हैं, लेकिन टर्म 1 की प्रैक्टिस आपकी जो है वो आपका CBSE पे जो भी उन्होंने पोर्टल देना है उसी के थ्रू चेक होना है। सो वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है। वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है, डबल आंसर्स हो गया, कट करके आंसर लिख दिया, डॉट लगा दिया, ये सारे रॉन्ग कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। OMR शीट वाइल स्कैनिंग दे डू नॉट पिक अप दीज आंसर्स, ओके, दे विल पिक ओनली द वन विच इज जस्ट हैविंग वन करेक्ट आंसर, ओके। तो इस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, this is very very important, very very necessary to understand it, and if you do so, if you apply the whitener, if you are cutting and answering it again, then no marks are given, ठीक है। तो लेटर बी जो आपने लिख दिया तो वो लिखा रहने दो, नहीं तो सोच समझ के लिखो, ठीक है जी। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? ओके, नो कंफ्यूजन। सो ओके, लेट अस कम बैक, the time is over, we'll consider this tomorrow, or I'll send you the answer key by solving it myself, okay, I'll solve it and I will send it, right?